رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ امام علی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید، سبت رسول اللہ اور سبت اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں۔ سید اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا شان تھی کہ ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شانہ اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے عرض کی، نعم المرکب رکبت یا غلام، یعنی صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کیسا ہے، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اے مومنو رب کا تمہیں مہمان مبارک، کہتے ہیں جسے سب ماہ غفران مبارک۔ ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک، ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک۔ میں کرو لاہوروں نکلیا سی بہت ٹینشن اینی ٹینشن سی بھئی کتھے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جدو اتھے پہنچے ہیں ساریاں ٹینشناں دور ہو گئیاں نے۔ یہاں میں بہت کچھ اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور مرشد اتار کے مدنی پھول مل رہے ہیں ہمارے کو۔ بالخصوص نماز کے حوالے سے وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اس کے بعد نماز کے جو احکامات ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر فرض علوم جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ بھی ایک ماہ کے اعتکاف کے اندر یہاں پر سکھایا گیا اور سیکھنے کو بھی ملا۔ مدنی مذاکرے، اس میں سوالات، اور دوسرا جو ادھر حلقوں کا نظام ہے یہ بہت اچھا ہے۔ جو ہمارے بزرگ نوجوان ہیں انہیں قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے، مسائل سکھائے جا رہے ہیں۔ قضا نمازوں کا طریقہ پیر صاحب نے رات مدنی مذاکرے میں بتایا، جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ اپنی جلد از جلد نمازیں قضا ادا کر لے۔ نماز درست ہوئی ہے، اتنے عرصے سے ہم پڑھتے رہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ یہاں پہ آ کے ایک الگ ہی ماحول نظر آتا ہے۔ یہاں پہ اس طرح کرائیں چنا اسی رزق جنہ ضائع کرتے سی نا، سانو اتھے آ کے پتہ لگا ہے بھئی اسی کس طرح رزق ضائع کرتے رہے ہیں۔ کار وچ برکت ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی ساڈے نگران نے سانو ہن آ کے دسیا بھئی ہر رزق دے دانے تے نہ کسے چ برکت ہے۔ ماشاءاللہ گھنوں کچھ سیکھن کا ملی ہوا ہے۔ غسل جو فرائض، مسواک جو سنتوں، نماز یا فرائض، نماز شرائط۔ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور سیکھیں، یہ وقت ہے، وقت بار بار نہیں ملتا انسان کو۔ روحانیت کیا چیز ہے، روحانیت کیسی ملتی ہے، کیا ہوتی ہے، وہ فیضان مدینہ میں تشریف لائیں، اعتکاف میں شرکت کریں اور دیکھیں گے انشاءاللہ روحانیت کیا ہوتی ہے۔ جو عاشقان رسول چاہتے ہیں کہ ہم بھی علم دین سیکھیں تو ان کو ہم یہی عرض کریں گے کہ وہ بھی آئیں، 10 دن کے لیے اعتکاف کریں تاکہ ان کو بھی جو فرائض علوم ہے وہ بھی آسانی سے سیکھنے کو جو وہ ملیں گے۔ اسی تے کہنے ہیں جڑے ٹینشن نہیں چاہتے نے کار چھڑ کے چلے جاندے نے، کوئی کتھے تکے کھاندا کوئی کتھے تکے کھاندا ہے، انہاں دا کوئی حل نہیں ہے۔ ایتھے آن انشاءاللہ انہاں دی آخرت اچھی ہوئے گی، کوئی سیکھے تے جان گے۔ اگر اچھا کام کریں گے تو الحمدللہ فائدہ ہوگا ہمارے لیے، اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں گے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر انسان کو ایک دفعہ یہاں فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کو زندگی کے اندر کچھ سیکھنے کے لیے ملے۔ میں نے یہاں پر یہ نیت کری ہے کہ میں نے جو داڑھی کٹوائی تھی اپنی اس سے توبہ کرتا ہوں اور اب 1 مٹھی کی داڑھی رکھوں گا، انشاءاللہ زلفیں سجاؤں گا، امامہ شریف سجا لیا ہے اور 63 دن کا تربیتی کورس
भी वो करूँगा और उसका फॉर्म भी भर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 माह के लिए और नियत करी है आगे। इत्काफ करने का सही मकसद जो अगर किसी ने इत्काफ करना है ना तो फैज़ान मदीना में आके अपने मकसद को पूरा कर सकता है। जिस तरह इधर इबादत का एक माहौल है ना दूसरी जगहों में शायद ना मिलता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक की रज़ा पाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाया हूँ। मकसद भी यही है कि जो वहाँ से इस्लामाबाद से यहाँ आया अपना कुछ टाइम जो है वो अल्लाह की राह में हुजूर की मोहब्बत में इस्लामी भाइयों के साथ गुजारने को मेरा दिल था। मुझे यहाँ माशाल्लाह बहुत लुत्फ़ आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली दफ़ा आया था तो मेरी दाढ़ी नहीं थी, अब अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह मेरी दाढ़ी है, मैं सुन्नत के मुताबिक चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत हमें नमाज का रोज़ाना कोई न कोई नया तरीका सिखाते हैं। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सलाम फेरने का तरीका इरशाद फरमाया था। कोई बलोचिस्तान, कोई पंजाब, कोई सिंध और दीगर कई शहर तो आवाम आई दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अतार दे साए तले सारे एक लग दिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे इतने मोहब्बत भरे अंदाज नाल गुफ्तगू कर दें, मज़ा आंदा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, नेकियों में गुजर रहा है, नमाज़ें बाजमात पढ़ रहे हैं और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत का दीदार देखकर रग़बत हो जाता है कि हम भी नेकियां करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन हासिल करने के लिए नशिस्तें लगती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही ज़ौक़ यही जज्बा देखते हुए मैं 4 से 5 इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने साथ लेकर आया हूँ। वो यही मेरे साथ 10 दिन का इत्काफ करेंगे। यहाँ पे 24 घंटे मतलब नमाज कुरान तिलावत इन्हीं चीज़ों में मतलब मसरूफ़ हैं और कोई जहन किसी ख़राब जगह नहीं जा रहा है, मुतमईन है, बहुत खुश हैं यहाँ पे। यहाँ पे नमाज रोज़ा दीगर तमाम मसाइल को आसान अंदाज में सहल अंदाज में बयान किया जाता है। तरबियत भी हो रही है, जैसे वालिदैन की फरमान बरदारी करना, बड़ों के साथ अच्छा सलूक करना, दोस्तों के साथ किस तरह रहना है, किस तरह, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सिखा रही है। गुंबद को देख के तो गुंबद खजरा फौरन दिल दिमाग में घूमा। ईमान ही तब कंप्लीट होगा कि जब वो हुजूर की मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा होगी। यहाँ आके जब हुजूर की याद आएगी तो फिर उस जगह के बारे में क्या कहने। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ है इल्म की मजलिस है, सुबह भी इल्मी बातें हो रही हैं, शाम भी इल्मी बातें हो रही हैं, फिर निगरान शुरा फजर के बाद बयान करते हैं, उससे भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ देखी है, जेड़े बंदे इत्थे आने तो बाद कई लोग मेरे सामने सिगरेट नस्वार पान वगैरह छोड़ी है, फिर चीज़ सुनने अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े ज़हन ते उत्ते असर कर दिए और साढ़ा दिल अंदरों रोंदा है। नमाजें पढ़ रहा हूँ, तरावी पढ़ रहा हूँ, ये सब कुछ पहले नहीं था मेरी ज़िंदगी के अंदर, एक ज़िंदगी मुकम्मल नज़र आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इधर आके सुनते रसूल और जुल्फ़े रखने का और इमामा शरीफ बांधने की नीयत की। जो मैंने कटवाई थी उससे मैं तौबा करता हूँ और इंशाल्लाह जो है आगे पूरी सुनते रसूल एक मुट्ठी रखने की नीयत करता हूँ। यहाँ भी आए माशाल्लाह से बहुत अच्छे, हर कोई अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करता है। बाहर वाला जैसे लोग बाहर बात करते हैं वो नहीं है, बहुत अच्छा आप जनाब से लोग बात करते हैं, तरबियत देते हैं, मदनी जहन देते हैं, लोगों को दीन के मसाइल से आगाह करते हैं। वहाँ लोगों को दीनी किताबों के तरगीब भी देते हैं कि इस किताब का मुताला फरमाएं, इस किताब का मुताला करें। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह खानपुर में फैज़ान मदीना में 1 माह का इत्काफ की बरकतें हासिल कर रहा हूँ और यहाँ पर 1 माह के इत्काफ में बाकायदा हल्के लगाए जाते हैं डेली और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें नमाज के मसाइल नहीं आते थे, वज़ू के तरीके नहीं आते थे अच्छे पूरे और गुस्ल पूरा करना नहीं आता था। डेली यहाँ हल्कों में हमें सिखाया जाता है और अब मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह 1 मुठ दाढ़ी रखूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह इमामा शरीफ मैंने सजाया और इंशाअल्लाह ये सारी ज़िंदगी इसी तरह इमामा शरीफ सजा के रखूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इर्तिकाफ की नियत ज़रूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नियत कर लीजिए। मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नियत की, आप मुअतकिफ हो गए। दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से भी दोहरा लेना ज़्यादा अच्छा है। तो इर्तिकाफ की नियत के बाद जब तक आप मस्जिद में रहेंगे मुफ्त सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफ्ल इर्तिकाफ ख़त्म हो जाएगा। फिर मस्जिद में आए तो दोबारा नियत कर लें।
याद रखिए मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम के पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इत्तिकाफ की नीयत की हो। नियत नहीं की थी तो इफ्तार नहीं कर सकेंगे मस्जिद में। हाँ, नियत कर लें और इफ्तार कर लें। बेहतर तरीका ये कि इत्तिकाफ की नियत अल्लाह की रज़ा के लिए करें, न सवाब के लिए करें। और कुछ जिक्र व दुरूद कर लें, चाहे तो कम से कम 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1445 सने हिजरी के माह रमज़ान मुबारक की 16वीं शब की निस्बत से रिसाला ज़ियाए दुरूद व सलाम पेज नंबर 5 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 16, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब हो भी बेसवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे आए बाशाएँ करता, अपने कहे पर बिला वजह ज़िद करता नहीं, शुक्रिया के साथ भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। আচ্ছা দোস্ত, কাজা রোজার সাথে কাজা তারাবি আদায় করা যাবে কিনা? তোর এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, আমি আলে সুন্নতের কাছে জেনে নিই। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, আমার নাম সেলিম, আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি। কাজা রোজার সাথে কাজা তারাবি নামাজ কি পড়া যাবে? माज़अल्लाह किसी ने रोज़ा कज़ा कर भी दिया तो गुनाहगार है, जानबूझ कर किया तो तौबा करे। ये तरावी की कज़ा नहीं है। तरावी इशा के फ़र्ज पढ़ने के बाद इसका वक्त शुरू होता है और सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इसका वक्त है। तो जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तरावी का वक्त भी ख़त्म हो गया, अब इसकी कज़ा नहीं है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वित्र अगर कज़ा हुए हैं तो वित्र कज़ा करने पड़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। If someone missed the Arabic khutbah of Jummah, is his Jummah salah valid or not? यानी कि अगर किसी ने जुमे की नमाज के लिए लेट पहुंचा है तो खुतबा मिस की उसने, तो क्या उनके जुमे की सलाह कबूल हो जाती है कि नहीं? कबूल करने वाला अल्लाह है, वैसे जुम्मे का खुतबा मिस नहीं करना चाहिए। खुदा न खास्ता मिस हो गया किसी का तो जुम्मे के जो उसने 2 फर्ज पढ़े हैं तो वो अदा हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने तो जुम्मा के खुतबा और इमाम साहब ने, खतीब साहब ने खुतबा तो दे दिया है, तो शर्त ये है कि 3 अफराद खुतबा सुनने वाले कम से कम हों। 3 का है ना? हाँ, 3 अफराद, तो वो हो चुका है खुतबा। लेकिन ये कि सबको खुतबा सुनना चाहिए, जानबूझकर ताखिर ना की जाए इसमें। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं गैर आलिम को आलिम कहना कैसा है? अब जब कंफर्म मालूम है कि ये आलिम नहीं है, अनपढ़ है, उसको आलिम कहना झूठ तो हुआ ना। खुशामदन कहा होगा या बाज़ों का तंजन भी कहते होंगे, को मसला गलत बता देता हो और आदत होगी तो बड़े अल्लाह मसाब है यार, आप तो हजरत आप खामोश रहे। तो यहाँ आलिम कहना ना पाया गया, बल्कि उसको रद्द किया गया कि तू आलिम है नहीं, काय को मसले बताता है। तो जैसा मौका मतलब, वरना ये कि आलिम समझना, उसको आलिम कहना समझकर, यार ये तो गलती होगा ना, जबकि पता है कि आलिम नहीं है। सवाल कर रहे हैं, बच्चों की उम्र कम शो करवाने के लिए बे फॉर्म पर 1 से 2 साल कम करके लिखवाने का क्या हुक्म है? अगर किसी ने ऐसा किया तो इसका इजाला क्या होगा? झूठ है ना ये दाखिला दिलवाने के लिए स्कूलों में ये करते हैं जी, 1 साल 2 साल कम बताते हैं, तो झूठ
झूठ है और इसकी सच्ची तौबा करे, इजाला होगा इसका, है ना। इजाला तो वही जहाँ कागजात हैं उसमें, हाँ कागजात में चेंजिंग, तो फिर उसका दाखिला और सब कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी क्या किसी को एहसास हुआ होगा, अब बच्चा जवान हो गया और पढ़ लिख कर आगे निकल गया, तो अब मसला किसी ने बताया होगा कि यार ये तो झूठ था, अब एहसास हुआ, डर लगा, तो तौबा करे। तौबा तो करनी ही पड़ेगी। अब इजाले क्या दुश्वार तरीन मामला है। सारे रजिस्ट्रेशन जितने भी इनके रजिस्टर्ड है सब में ये वही उम्र लिखी होगी, हर साल वही उम्र, 6 माह में भी जो इम्तिहान होते हैं इनमें यही उम्र, और दीगर मामला में भी उम्रें गलत दिखवाते होंगे। और मतलब अब तो बगैर सनद के, सनद भी तरकीब बन जाती है, मिल जाती है, जो उनसे सनद चाहिए मिल जाती होगी। मतलब ऐसे मुझे पता है, मतलब बाद ऐसे केस देखे हैं मैंने कि कहीं नौकरी लेनी है तो जाली सनद लेकर नौकरी भर्ती हो गया। ये झूठ है, ज़रा धोखा है, झूठ है। रोजी देने वाला अल्लाह है। तौबा तो करनी ही पड़ेगी, फर्ज है। और साथ में ये कि इजाला भी जहाँ जहाँ मुमकिन है इजाला करना, यानी ये बता दिया जाए कि मैंने गलत उम्र लिखवाई थी, ये उनको यानी कि जो स्टाफ है उनको। अब आवाम के सामने अपने गुनाह का इजहार करना कि मैंने झूठ बोला था, इसकी हाजत नहीं है, बल्कि ना करे गुनाह का इजहार। मेरे अहले सुन्नत, मैं मोहम्मद यमीन गिलानी जेल से बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक सवाल अर्ज करना है। अगर स्कूल में बच्चा काम अच्छा करे तो टीचर तालियां बजाने के लिए कहती है, क्या तालियां बजाई जा सकती है? जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा काम कर लिया तो तालियां बजाई जाती हैं। हाँ, स्कूल में तालियां बजाई जाती है, और भी बहुत सारे कामों में, तकरीबों में, सालगिरह में और जलसों में, और तालियां तो आम है हमारे यहाँ। तो ये तालियां बजाना नाजायज है, गुनाह का काम है, इससे तौबा करनी चाहिए। और ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहिए जहाँ तालियां बजती हो। एक गुनाह भरे मजमे का हम बढ़ा रहे ना उसको, उसमें हिस्सा बन रहे हैं उसका, तालियां भी सुनेंगे, फिर अच्छा आप ताली नहीं बजाते हो, जान जान के यूं करेंगे, तो गुनाह करने वालों की नक्काली तो की ना आपने। तो ये जो रास्ता जन्नत का हो ना उसी पर चला जाए, जो रास्ता जहन्नम की तरफ ले जा रहा है ना उसका रुख ना किया जाए, इतने में समझ जाए। घाट घाट का पानी पीने की क्या जरूरत है यार, मदनी घाट अपने पास मौजूद है, वाया मदीना जन्नत की तरफ इंशाअल्लाह रुख है अपना। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद हज़ान खान का दामन पकड़े रहे हैं। इन्होंने गौस पाक के कदमों में हमें डालना है, और गौस पाक में अपने नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुँचाएंगे, और इंशाअल्लाह बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। सैयदी अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि SMS के ज़रिए सवाल है, कनाअत से दूरी ही क्या टेंशन और डिप्रेशन का सबब है? कनाअत से दूरी? जी, कनाअत से दूरी। मुमकिन तो है बिल्कुल, यानी कि जितना अल्लाह ने दिया है उसी को मतलब काफी समझना, हल मिम मजीद यानी उसकी हिर्स ना रखना, तो ये तो है बहुत बड़ी सादत की बात। कनाअत तो बहुत बड़ा वस्फ खूबी है जो अल्लाह जिसको अता कर दे। बातें तो सबको करनी आती है, लेकिन हकीकत में कनाअत पसंद होना, काने होना, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। तो अब अगर कनाअत नहीं होगी तो टेंशन रहेगा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो इतना मिला, उतना चाहिए, उतना चाहिए, इतना चाहिए, तो हल मिम मस्जिद का नारा लगता रहेगा। कनाअत नहीं मिलेगी तो टेंशन और डिप्रेशन भी हो सकता है इसका, और बल्कि टेंशन तो कहूँ कि हर बीमारी का सबब बन सकता है, तो शायद हो सकता है कि बन सकता हो। यानी जैसा टेंशन, बाज़ों का हल्का फुल्का टेंशन होता है, कोई मसला नहीं होता, बाज़ों का देखे वो ज़्यादा टेंशन होता है, फिर इससे ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि वो टेंशन इतना होता है कि बाज़ों का बंदा हार्ट फेल हो जाए, खुदकुशी की तरफ माइल हो जाए। तो खामखा का दुनियावी टेंशन पालना ये नहीं ठीक। हाँ, ईमान
की हिफाजत का टेंशन हो, बुरी मौत के ख़तरे का टेंशन हो कि कहीं मेरा ईमान ना ज़ाया हो जाए, मेरी आखिरत ख़राब ना हो जाए, क़यामत के दिन पुल सिरात से मैं कैसे पार लगूंगा, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता मगर गुनाह मेरे कहीं मुझे जहन्नम में ना पहुंचा दे। इस तरह के टेंशन ये सआदतमंदों का हिस्सा है, ये होने चाहिए। जब भी तो आदमी गुनाह से बचेगा और दूर हटेगा और बिल्कुल लाउबालीपन होगा और इजी लेता रहेगा गुनाह को, तो गुनाह से बचेगा कैसे? सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी अब्दुल्ला मंजूर अत्तारी इस्लामाबाद से SMS के ज़रिए सवाल पूछ रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, नमाज में अगर बेसाख्ता दुरूद पाक ज़ुबान से जारी हो गया, चाहे वो क़याम में या किसी भी रुकन में, तो आया कि नमाज हो जाएगी या नमाज फासिद हो जाएगी? बाहर शरीयत जिल्द पहली पेज नंबर 606 मसला नंबर 17 अल्लाह पाक का नाम मुबारक सुनकर जल्ला जलालुहू कहा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सुनकर यानी नाम मुबारक सुनकर दुरूद पढ़ा, या इमाम की क़िराअत सुनकर सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहू कहा, तो इन सब सूरतों में नमाज जाती रही। जबकि बक़सदे जवाब कहा, जवाब के इरादे से कहा, और अगर जवाब में ना कहा तो हरज नहीं। यूं ही अगर अज़ान का जवाब दिया नमाज फासिद हो जाएगी। तो जो ये सवाल किया गया कि बेसाख्ता अचानक दुरूद शरीफ जारी हो गया, तो अब अगर किसी जवाब के ज़िम्न में नहीं था, बेसाख्ता जवाब में भी जारी हो सकता है कि वो नमाज क़िराअत में ये अल्फाज आते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो बेसाख्ता जारी हुआ जवाब, आदत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर जवाब की नीयत से ये ज़बान से जारी हुआ तो नमाज टूट जाएगी, और जवाब की नीयत नहीं थी तो कोई हरज नहीं है। अब जैसे क्या छींक आई किसी को तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो जवाब की नीयत नहीं है तो कोई हरज नहीं है। और अगर दूसरे ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और इसने जवाब की नीयत से नमाज पढ़ने वाले ने यरहमुकल्लाह कहा तो नमाज टूट जाएगी। तो ये इस अब अल्लाह का नाम ले और नमाज टूट जाए, तो यहाँ मतलब ये जो जवाब जो है ना, ये कलाम इसको कहा जाएगा, नहीं ये बातचीत है। तो यहाँ नमाज में बातचीत की इजाज़त नहीं है, तो ये बतौर बातचीत अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक या ये यरहमुकल्लाह वगैरह कहा गया। किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो ज़ाहिर है कि सलाम भी तो दुआ है और सलाम अल्लाह का नाम है। तो अब ये कि इसका भी किसी ने जवाब दिया तो नमाज टूट जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सजीदी आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि अदनान अहमद का सवाल है, कोई ऐसा शख्स पहली सफ़ में खड़ा हो जाए जिसका दिमागी मसला हो, नमाज में वो इधर उधर दाएं बाएं सामने पीछे हर जगह देखता रहे, ऐसे को पहली सफ़ में खड़ा होने का क्या हुक्म और इनको किस तरह हटाया जाए वहाँ से? पहली सफ़ हो या आखिरी सफ़ हो, ऐसा शख्स जो दीगर नमाजियों की ईज़ा का बाइस होता हो तो उसको मस्जिद से रोकना वाजिब है, और उसके लिए वाजिब है कि जो इसकी कुदरत रखता हो। वरना ये क्या मेरे जैसा आपके जैसा उसको हटाएगा ना कि भाई आप चले जाओ, तो लोग उसकी हिमायत में फितना करेंगे, फसाद करेंगे। इसको नमाज, अरे भैया नमाज तो पढ़ी नहीं रहे, उसको पता ही नहीं नमाज कैसे पढ़ते हैं, सफ़ भी कता कर रहा है और नमाजियों के लिए तशवीश का बाइस बन रहा है, तो इसका मस्जिद में क्या काम? तो पगले आ जाते हैं मस्जिदों में, लवारे करते होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, कासिफ ज़दाओं उठा लेते हैं, अचानक पहली दूसरी तीसरी रकात में वो दमबाजी शुरू कर देता है। तो मिर्गी के मरीज़, ऐसे मिर्गी के मरीज़ के इनको दौरा पड़ जाता है और वो गिरते हैं और झाग मुँह से निकलता है। ये नमाजों में सफ़ों में गिर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के मतलब मनाजिर हो सकता है आपने देखे हों, मुझे भी अपने इसके तजर्बात
याद पढ़ते हैं कि इस तरह होता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे अफराद को नमाज में सफ़ों में नहीं आना चाहिए। हाँ, हर मिर्गी का मरीज ऐसा नहीं होता तो उसमें हर्ज नहीं है कि जो नमाज प्रॉपर पढ़ सकता है, समझता है सब कुछ, और इसको इस तरह के अचानक दौरे नहीं पढ़ते जिससे वो सब उताज हो जाए सारा निज़ाम। उछलते हाथ पैर मारते हैं नमाजों में, बाज़ औक़ात वहाँ से भाग गया, जिन आ गया, तो इधर बाज़ भागते हैं, तो उधर भागते हैं कि कुछ क्या हो गया। ये जब रश ज़्यादा होता होगा तो घबराहट ज़्यादा होती होगी। तो मस्जिद अमन की जगह और पूरा अमन माहौल इसका ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे नमाजियों को तकलीफ, मस्जिद का एहतराम पामाल हो, फ़ज़ा जो है वो मस्जिद की ख़राब हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम के साथ सौद या सलाम लिखना, नीज़ अंबिया किराम अलैहिम रिज़वान के नाम के साथ आइन और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के साथ रा दौद लिखना कैसा है? अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक लिखा तो उस पर पूरा दुरूद शरीफ लिखना चाहिए। इसका मुखफ़फ़ शॉर्ट फॉर्म स्वाद सलअम ये लिखते हैं। इसको फतह रज़विया में भी, बहार शरीयत में भी हराम लिखा है। और लिखना है तो फिर पूरा दुरूद शरीफ लिखे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम इतना लिखे। अब रहा ये कि रेज़वाद रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह औलिया किराम के नामों के साथ रहमतुल्लाह अलैह की जगह राहा इस तरह जो लिखते हैं तो ये भी ना करें, सब मना है कि रज़ियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैह ये पूरा लिखें। लेकिन वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जो स्वाद लिखा वो ज़्यादा सख्त है ना, ऐसा ही है ना, वो ज़्यादा सख्त है। अच्छा, अल्लाह पाक के नाम के साथ जीम लिखते हैं, इसका हुक्म भी शायद वो सख्त नहीं है। अच्छा, लिखे तो पूरा लिखे, वरना ना लिखे तो ये भी नाजायज़ है फिर। अच्छा, तो अल्लाह पाक का नाम लिखने के साथ लिखना ही है तो जल्ला जलालुहु पूरा लिखे, और या ताला लिख ले तो भी काम चलेगा। अज़्ज़ा व जल या अल्लाह पाक, अल्लाह करीम, ये ताज़ीम के अल्फाज। इसमें बारह उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि नाम मुबारक अल्लाह का जब लिखा जाए, लिया जाए तो उसमें ताज़ीम का लफ्ज़ कंपलसरी है या नहीं है, वाजिब है या नहीं है। तो बहरहाल लेकिन जब लिख ही रहा है तो आप पूरा लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में मौजूद हाज़रीन में से एक मोतक़िफ़ इस्लामी भाई सवाल अर्ज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे स्पेशल पर्सन इत्काफ़ में हैं, एक स्पेशल पर्सन आपसे सवाल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि मर्द अपने पाँव पे मेहंदी लगा सकता है, और दूसरा सवाल ये है कि बाज़ ख़ानदानों में मैयत के पाँव पर मेहंदी लगाते हैं, इसका क्या हुक्म है? जवाब इरशाद फरमा दें। मेहंदी औरत मेहंदी से हाथ पांव रंगती है, ठीक है ना, तो उनके लिए तो जायज़ है। मर्द अगर औरत की तरह मेहंदी से हाथ या मेहंदी से पांव रंगेगा तो गुनाहगार है। और मैयत के पांव के साथ मेहंदी औरत की तरह जो रंगते हैं तो ये जीनत में आएगा। मैयत की भी जीनत करने की शरीयत में इजाजत नहीं है। मर्द तो मर्द, औरत को भी पाँव में या हाथ में मैयत को मेहंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जीनत है ना, मैयत के लिए जीनत नहीं करनी, ये मना है। यानी यहाँ तक माज़अल्लाह वो शेव तक बनाने की इत्तला है। मैयत की शेव बना देते हैं, थोड़ा बाल बड़ी था ना बीमारी में, शेव बना देंगे। दूल्हा फौत होगा कोई तो उसको दूल्हे का लिबास पहना कर फिर उसको दफनाएंगे।
अगर कफन चोर कोई पावरफुल हो तो उसका तो काम हो जाए, कीमती जोड़ा निकाल ले हो तो नहीं, बिल्कुल जो समझ में आता है लोग कर रहे होते हैं। उलमा से नहीं पूछते कि हम ये करें कि नहीं करें, अपनी जो समझ में आता है पुराने रिवाज चले आ रहे होते हैं बाप दादाओं से, ये वो कर रहे होते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह, जो सुन्नत है वही कफन दिया जाए और जो शरीयत इजाज़त दे वही काम किए जाए। पता नहीं क्या क्या करते हैं, औरतों को भी दुल्हन है तो ये इसी तरह दुल्हन बनाकर को दफनाते होंगे, फिर जेवरात भी पहना देते हो तो कोई भरोसा नहीं है, पहनाते आर्टिफिशियल होंगे शायद। तो बहरहाल ये इस तरह नहीं करना होता, जो सुन्नत है उसी में अजमत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। ये स्पेशल पर्सन इस्लामी भाई हैं तो उनकी मदनी फीस भी कोई स्पेशल होनी चाहिए। माशाअल्लाह, इंशाल्लाह चांद रात से 3 दिन मदनी काफिले में इंशाल्लाह सफ़र करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक और इस्लामी सवाल कर रहे हैं जी। अमीर सुन्नत की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल अर्ज़ है कि गूंगे बहरे इस्लामी भाई के लिए तकबीर तहरीमा का क्या हुक्म है, जो आप इरशाद फरमा दें। जो शख्स तकबीर के तलफ़ुज़ पर कादिर ना हो, यानी कुदरत ना रखता हो, ना बोल सकता हो, मसलन गूंगा हो या किसी और वजह से ज़बान बंद हो, उस पर तलफ़ुज़ वाजिब नहीं, दिल में इरादा काफ़ी है। 3 दिन मदनी काफिला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल चांद रात इंशाअल्लाह। मेरा नाम उसाद रज़ा तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत, आज हज़रत सैयदना आले मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक है। अमीर अहले सुन्नत, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि हज़रत सैयदना आले मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में हमें कुछ इरशाद फरमा दीजिए। मेरे और मेरे वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत भी फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। हज़रत सैयदना आले मोहम्मद मारेरवी रहमतुल्लाह अलैह ये सिलसिला आलिया कादरिया रज़वा के पेशवा थे और 18 रमज़ान मुबारक जुमेरात को बिलगिराम इंडिया का कोई शहर है उसमें पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी हज़रत शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की आगोश शफ़क़त में परवान चढ़े और वालिद मुकर्रम ही से शरफ़ बैत व खिलाफत इजाज़त हासिल था। आप मुकम्मल 3 साल तक एतिकाफ में खलवत गुज़ीर रहे और जौ की रोटी से इफ्तार किया करते थे। वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी ही में आपको अपना मुकम्मल सज्जादा नशीन मुकर्रर फरमा दिया था। चुनांचे जब कोई तालिब इनकी खिदमत में आता तो फरमाते, आले मोहम्मद के पास जाओ, उसने मेरे सर से बहुत बोझ हल्का कर दिया है और मुझे बहुत राहत व आराम बख्शा है। आप रहमतुल्लाह अलैह के तकरीबन 22 खुलफा थे जिनकी वजह से सिलसिला कादिरिया को बहुत फरोग हासिल हुआ। 16 रमज़ान मुबारक 1164 से हिजरी पीर शरीफ की रात को आपका विसाल हुआ, यानी वफात पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक मारेरा शरीफ में है। ये हमारे शजरे में जो सिलसिला है तो उसमें ये 34 नंबर है इनका मशाइख में। सल्लु अलल हबीब। एक और इस्लामी भाई, उमूमी इस्लामी भाई आपसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद असमत सईदी अत्तारी है, शहर जुतई फुल्ला शरीफ से हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा एक सवाल अर्ज है, किसी के पास सूद की रकम हो, उस रकम से हस्पताल या उसके अदवार में व्हील चेयर रखवा सकते हैं? इसमें गुनाह तो नहीं? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं रखवा सकते, ना व्हील चेयर रखवा सकते हैं, ना टेबल रखवा सकते हैं। ये जो सूद है ना, सूद जिसने हासिल किया तो उस पर ये कंपलसरी है
کہ یا تو جس سے سود لیا ہے انٹرسٹ تو اسی کو دے دے، یا پھر یہ کہ کسی فقیر کو دے دے جو شرعاً زکوٰۃ کا حقدار ہو، اس طرح کے کسی فقیر کو دے دے اور ثواب کی نیت نہ کرے. یہ دو صورتیں ہیں. باقی یہ کہ اور کسی جیسے بعض لوگوں کا تو کئی بار میں نے سنا کہ وہ مسجد کے استنجا خانے جو ہوتے ہیں واش روم یہ بنا دیے جائیں سود سے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. سود کا یہ مصرف نہیں ہے، سود سے جان چھڑانی ہے اور توبہ بھی کرنی ہے. لیا کیوں؟ اب یہ کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ نہیں لیتے بینک سے تو یوں ہو جاتا ہے، یوں مس یوز ہو جاتا ہے. تو آپ نے پہلے تو سودی دھندا کیا کیوں کہ آپ کو اس سے سود لینا پڑ جائے؟ تو اس لیے وہ سیونگز اکاؤنٹ میں تو سود ملتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا اس کی علماء اجازت دیتے ہیں، اس کو سود نہیں ملتا. تو جو بھی علماء سے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے. سود اب بنتا ہے، سود لینا پڑتا ہے، تو ایسا کام ہی نہ کرے آدمی، بچے اس سے کہ تو آگ ہے جہنم کی آگ پیٹ میں کائے کو بھرتے ہیں یا ہاتھ میں بھی کیوں پکڑتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ مدنی فیس کیا عطا فرمائیں گے؟ 1000 جی 1000 1000 مدنی فیس. 1000 روپے دیں گے نا یہ آپ کو، دعوت اسلامی کو دیں گے. چلو یہ بھی لے لو. باقی مدنی فیس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں، اس کو ان کو پورا کیا 1000 کیا 1000 what do you mean for 1000؟ مطلب 1000 مطلب جو قافلے کے ساتھ، مطلب میں ساتھ چلوں گا مدنی قافلے کے لیے. مدنی قافلے میں 1000 روپے دے کے خود سفر کروں گا. 1000 روپے تو نہیں لیتے 3 دن کے مدنی قافلے کے. جتنا مطلب ہے کہ بنے گے انشاءاللہ ضرور تعاون ہوگا. ایک گھبرا گئے سر. ہاں ماشاءاللہ یہ سمجھ گئے کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، پیسے دینے ہیں تو خرچہ بہت ہے دعوت اسلامی کا، پیٹ ہمارا باکس چھوٹا ہے تو ٹھانس کے بھی اس میں ڈال دینا ہے. اس میں کیوں ہم رعایت کریں یار کہ ہاں نہیں آپ دعوت اسلامی کو مت دو، یہ تو کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ہمارے لیے اگر کوئی دے تو ہم اپنے لیے نخرے کریں گے کہ یار نہیں ہم کو مت دو. دعوت اسلامی کے لیے تو دو، اور جتنے بھی آئے ہیں وہ سب دو یار. دعوت اسلامی کیا کرتی ہے؟ دین کی خدمت ہی تو کر رہی ہے، اسی پہ تو خرچ ہو رہا ہے. اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ. اور دعوت اسلامی کے تو اربوں روپیہ خرچہ ہے سالانہ، کم خرچہ بھی نہیں ہے. اللہ پاک پورا کرتا ہے اپنی رحمت سے، اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ دیتے ہیں. کام چل رہا ہے، کتنے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، اور کیا کیا کام چل رہا ہے. FGRF کتنا دکھیار ہے، آقا کی دکھیاری امت کی کتنی خدمت کرتی ہے نا. انبلیویبل یہ خدمت ہے، یعنی کہ یہ اتنی جلدی اس نے ترقی کی ہے FGRF نے کہ میں سمجھتا ہوں عقل کام نہیں کرتی. ہم نے بہت لیٹ کر دیا یہ شروع کر کے، ایسا لگتا ہے. مکانات تک بنا کر دے رہی ہے. جتنی بھی NGOs تھی وہ سب چلی گئیں. سیلاب کا جو ہوا تھا ابھی ہمارے یہاں کراچی، سندھ، پنجاب، یہاں بھی تو غالباً ساری چلی گئی. لیکن FGRF ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ ہم خالی پانی نہیں ہٹائیں گے، ہم ان کے مکان بھی بنا کے دیں گے. جن کے مکان اس میں ٹوٹ گئے، ہم کھانا کھلا دیں ایک وقت کا، اچھا کام ہے یہ. پانی بھی نکالنے کا کام بھی سب نہیں کرتے. الحمدللہ ہماری FGRF نے ان کے پانی کی بھی نکاسی کری مشینیں لگا لگا کر. اور جن کے مکان ٹوٹ گئے ان دکھیاروں کو مکان بھی بنا کر ہینڈ اوور کیا، اور اب بھی مکانات کی غالباً تعمیرات کا سلسلہ جاری. 5000 کم و بیش جزوی کلی طور پر ہینڈ اوور کر دیے گئے ہیں اور بقیہ کی تعمیرات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے الحمدللہ. یہ اتنی FGRF نے ترقی کی کہ میں انبلیویبل یہ اپنے ذہن میں اتنا آتا نہیں تھا. حضور غزہ میں بھی حالانکہ راستے اتنے زیادہ آسان نہیں ہیں، ابھی تو بارڈر پہ ہی کوئی اندر نہیں آنے دیا جا رہا، اور وہاں بہت سارے لوگ جو اپنا سامان بھیج رہے موجود ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ ترکیب بنا کر بھی غزہ کے اس وقت مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی FGRF کے ذریعے وہاں پر نظام کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اور روزانہ جو مدنی خبروں کو دیکھتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ کم و بیش روز ہی مدنی خبروں میں آپ کو FGRF کی جو غزہ کی جو سروس ہے وہ بھی، اور جو ترکیہ میں جو شامی مسلمانوں کے لیے جو کنٹینر جو وہ اپنے یتیم خانہ جو بنایا جا رہا ہے وہ بھی، اور جو ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں جو کنٹینر جو کے جو ہاؤس ہیں
कंटेनर में जो घर बनाए गए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिलसिला अब तक जारी है, और अभी भी वहाँ भी जो बेचारे जो मुसलमान परेशान हैं उनके साथ भी अभी FGRF के हमारे आशिकान रसूल अपना काम उनके साथ मिलकर भी अभी भी कर ही रहे हैं। जैसे अमीर सुन्नत ने भी फरमाया भी है कि दावत इस्लामी के साथ आपका ताउन, माली ताउन भी जारी होना चाहिए। आपके वक्त की भी ज़रूरत है, आप ख़ुद भी आएँ, अपना वक्त दें। बहुत सारे दावत इस्लामी के दीनी काम हैं, कई शोबे जिनमें आप अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। जो मुतक़िफ़ीन हैं वो भी रोज़ाना कुछ ना कुछ इनकी भी नॉलेज में आ ही रहा होगा। और जहाँ जहाँ हमारे मुतक़िफ़ीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 26 मकामात पर इस वक्त पूरे महीने का इत्तिकाफ़ जारी है, और मदनी चैनल पर भी आप सुनते रहते हैं। तो और माशाल्लाह माह रमज़ान में तो कुछ ना कुछ आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो ही रहा होगा, जो मदनी चैनल मुस्तकिल देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी आपको पता चल रहा होगा। तो अपना वक्त भी दें, ख़ुद भी आएँ, और आपका जो सरमाया है, ज़कात है, फ़ितरा है, दीगर नफली सदक़ात हैं, ये भी दावत इस्लामी को दें, ताकि ये अरबों के खराजात भी पूरे हों और हम आगे से आगे मज़ीद बढ़ सकें। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना को तो एयर कंडीशनड किया हुआ है, तो इसकी भी ज़ाहिर बिजली जो सर्फ होती है, यानी कि लाखों लाख रुपए बिल आता है महीने का, समझो। तो आखिर ये भी तो पेमेंट करना है ना। नहीं, आपने कभी ज़िंदगी में अपने घर में AC को दाखिल होते नहीं देखा होगा, एहतिकाफ में आए तो AC के मज़े लूट रहे। हुज़ूर कुछ लोग क्योंकि अब ये मौजू चल रहा है, तो देखने वाला सुनने वाला हर एक तरह का आदमी होता है। तो ये चंदा करना यार, जब जिसको देखो चंदा, तो यहाँ भी चंदा वहाँ भी चंदा, तो यह चंदा ही चंदा है। तो चंदा करेंगे तो काम कब करेंगे, तबलीग कैसे होगी, ये सारी बातें जो जहनों में बातों का इश्काल और वसवसे पैदा करती हैं, तो उनको आप किस तरह मुतमईन करेंगे? ये तो हर वक्त चंदा करते कब है, तो बात पर बात निकली तो मैंने बोल दिया, समझे। तो नेकी की दावत नहीं थी इससे आगे पीछे, तो ये वैसे खाली चंदा देने के लिए सब जमा हुए या सुन्नतें सीखने के लिए जमा हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चंदे की तो बात तो किए बगैर गुजारा भी नहीं है ना। आपको तो जुम्मा पढ़ना, अगर सारी पांचों नमाज नहीं पढ़ते तो मस्जिद चंदों ही से तो बनती है। कहाँ पढ़ेंगे जाकर जुम्मा, ईद कहाँ पढ़ेंगे, मैदान में पढ़ेंगे। तो मैदान में भी माइक का इंतजाम, दरियों का इंतजाम और डेकोरेशन कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये भी चंदा ही करते होंगे ना। चंदे के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। कमो बेश तो 14,000 के से ज़्यादा जामियतुल मदीना, मदारिसुल मदीना दावत इस्लामी के हैं, सब मिलाकर 14,000 से ज़्यादा। पढ़ने वालियाँ, बच्चे बच्चियाँ सब मिलाकर की तादाद कमो बेश हिफ्ज़ नाज़रा दरस निज़ामी मिलाएं तो 5 लाख से ज़्यादा की तादाद बनती है। और इन इदारों से फारिग होने वालों की तादाद भी 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, हिफ्ज़ नाज़रा दरस निज़ामी और सब मिलाकर। और दुनिया भर में जैसे यूके में जाएं तो 104 मदनी मराकज़, इन सबको चलाने के लिए यूके में भी, अमेरिका में भी, दीगर ममालिक में भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में भी, दीगर ममालिक में भी, हांगकॉन्ग में हमारे 10-11 मदनी मराकज़ हैं। मैं गया हूँ हज़ूर हांगकॉन्ग में, मैंने वो तमाम हमारे मदनी मराकज़ का जब मैं दौरा किया तो वहाँ के आशिक़ान से कहने लगे अल्लाह दावत इस्लामी का भला करे, दावत इस्लामी वाला ने हमको सुखी कर दिया है। अब ये परदेश में हम कहाँ, मतलब कि नमाजें, फिर बड़ी रात, तो ये माह रमज़ान, तो हमारे बच्चों का कुरान, तो ये महफिल मिलाद, अब ये हम कहाँ ढूंढने जाते। ये दावत इस्लामी को अल्लाह सलामत रखे, ये हमारा सारा वो निज़ाम है। ये अभी हमारे अकील मदनी नेपाल में बैठे हुए हैं, तो ये माशाल्लाह दुनिया, तो ज़ाहिर जहाँ भी आप दावत इस्लामी को देख रहे हैं वहाँ एक मस्जिद चलाने के लिए भी आपको चंदा करना पड़ता है, बगैर चंदे के आपकी एक मस्जिद भी नहीं बनती। तो जो दावत इस्लामी जिन शहरों में दीनी काम कर रही है, जिन ममालिक में कर रही है, और जिस लेवल पर कर रही है, और जहाँ भी काम अभी करना बाकी है, वो तो बहुत बाकी है, तो सबके हुआ ही कुछ नहीं है। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि ठीक ठाक दावत इस्लामी को डोनेशन की ज़रूरत है। तो आप अपना दिल बड़ा रखें, थोड़ा जेब भी बड़ा करें, हाथ भी बड़ा करें, और बढ़ाकर दावत इस्लामी को अपना डोनेशन दीजिए। रमज़ान रमज़ान है रहमते रहमान, रमज़ान रमज़ान है रहमते रहमान। नवासाए रसूल शम्ने मुर्तदा के जन्नती फूल जगर गोशल बतूल सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर रात सूरतुल कहफ की तिलावत फरमाया करते थे। ये मुबारक सूरत एक तख्ती पर लिखी हुई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिस रोजा के पास तशरीफ ले जाते, यह मुबारक तख्ती भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बरा होती। अगर रोजे में कुछ
भूल के खा पी ले तो रोजा नहीं टूटा। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजे का नाम रेयान है, उसमें से सिर्फ रोजेदार ही गुजरेंगे। मैंने आज पहला रोजा रखा है। प्यारे मुझे मैंने 2 रोजे रखे हैं। पापा जब मैं मदीना में हूँ, मैंने पहला रोजा रखा, आप दुआ कीजिएगा। मैंने 2 रोजे रखे हैं। पापा मेरे लिए दुआ करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह पाक जिसकी बदौलत मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह फरमाएगा। या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान लिखा, मुद्दतों से दिल में ये, मुद्दतों से दिल में आता का अरमान है। नेक बनना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, आपकी आंखों का तारा बन जाऊं। कदमों से चल मदीना, कदमों से चल मदीना। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं हैं। 7 करोड़ मरहबा। बड़ी प्यारी प्यारी रिवायतें भी सुनाई बच्चों ने। अल्लाह करीम इन सारे बच्चों बच्चियों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और घर वालों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा जय से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अहमद इस्माइल अत्तारी जामिअतुल मदीना फैज़ान बुखारी मुसालिन कराची अमीर अहले सुन्नत जी बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि काल जे मदनी मुज़ाकिरे में आई सजदा शुक्र जो तरीक़ो बतारिया हुआ, इन जे मुतालिक सवाल ही अर्ज़ है कि कुरो सजदे में सुबहान रब्बियल आला जे अलावा ओते जी ज़बान में दुआ करी सघूं या ना। ने बियो सवाल ही वो कि सजदा शुक्र ने सजदा तिलावत जे लाइ क़िबला रू थीनो ज़रूरी है या नहीं। मुझे घरवालों जी, मुझे असास इकराम जी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत, सलामती, ईमान ने हाज़री मदीना जी दुआ भी फरमाई दीजा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन। सजदे शुक्र जॾहिं कोई नेमत हासिल थिए या मुसीबत दूर थिए तॾहिं करण जो होई तो सजदे शुक्र जो तरीक़ो ये है कि उबे उबे अल्लाहु अकबर चवी ने सजदे में भी ने सुबहान रब्बियल आला 3 वक़्त या 5 वक़्त 7 वक़्त पढ़े। ॿियूं दुआयूं भी इन्हनि जूं पढ़नि जूं ॿाहिरि शरीफ़ में ग़ालिबन लिखिया जूं, चाहे तो वो भी पढ़ी सघनि तो ने दुआ पोते ही ज़बान में जो दिल में दुआ अचे थी वो भी करी सघे तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ॿियो कोई सवाल तो ना होने। हाँ, ये सजदे में किबले की तरफ रुख रखनू ये भी जरूरी है। यानी सजदे शुक्र के बारे में ये सवाल था, तो इसका तरीका ये है कि किबला रुख खड़े होकर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहे, चाहे तो वो 3 बार या 5 बार 7 बार 9 बार जितना वो ताक अदद में सुबहान रब्बियल आला पढ़े। और हदीसों में दुआएं भी हैं, बाहर शरीफ में लिखा हुआ है दुआएं, तो वो भी पढ़ सकते हैं और अपनी ज़बान में भी दुआ मांग सकते हैं। तो इस सजदे शुक्र के बाद अल्लाह ऊपर कहते हुए खड़े हो जाए, इसमें सलाम फेरना वगैरह नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। कल आपने सजदा शुक्र पर जो माशाल्लाह कलाम फरमाया था, और मदनी मुज़ाकरे के बाद कुछ नेकी की दावत का सिलसिला रहा, तो वहाँ इसी को हमने कोट किया कि आज मदनी मुज़ाकरे में यूं बयान किया गया। तो जो बैठे थे बड़ा उन्होंने इस बात को सराहा कि किस तरह सजदा शुक्र करते रहना चाहिए। और जैसे आपने फरमाया कि एक मर्ज़ के ताल्लुक़ से कि इसमें मुझे कुछ इफ़ाक़ा बेहतरी आई तो मैंने सजदा शुक्र अदा किया। फिर आपने एक बुरी एक बात की, जैसे कि मेरे ये इस्लामी भाई हैं या ये कहीं जगह मुझे पता चलता है खैरियत से आ गए, तो किसी और के बारे में सजदा शुक्र कर लिया, उसको पता भी नहीं चला कि मैंने सजदा शुक्र कर लिया है। तो इस तरह की बात है कि
آدمی مطلب کہ بہت بڑے بڑے اہداف اور ٹارگیٹ رکھتا ہے، اور اس ضمن میں اس سے کئی اور اللہ کی رحمت سے نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، مگر وہ اس کا نہیں یار وہ ہو جائے گا تو، لیکن کیا یہ ہر ایک ملنے والی نعمت، راحت، سکون، فرحت پر اگر یہ سجدہ شکر کرتا رہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے تو وہ جو بڑے اہداف ہے اس طرف اس کی نہیں مزید انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی صورت بنتی جائے گی. بے شک. تو میں نے سجدہ شکر کیا اپنی تکلیف کم ہونے پر، تو پھر اور کم ہوئی تو الحمدللہ میں نے پھر سجدہ شکر کیا. دیر نہیں لگتی یار، بھائی یاد آنا چاہیے اور ذہن ہونا چاہیے اور اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یار. اچھا یہ باوضو ہونا بھی ضروری ہے سجدہ شکر میں، ہے نا، باوضو بھی. تو میں یہ میمنی کلپ جو ہے نا ایک اچھا بن سکتا ہے، میں میمنی میں اس کو جواب دے دیتا ہوں، اور نپا تلا اگر الفاظ ہوں گے تو شارٹ بنے گا. جی فرمائیے، پھر میں کچھ عرض کروں. کوئی نعمت حاصل تھی ہے اللہ جی یا کوئی پریشانی دور تھی ہے تو سجدہ شکر کراوائے. سجدہ شکر جو طریقہ ہوئی ہے کہ باب وضو ہوئے، قبلے طرف منہ ہوئے، نے اللہ اکبر چوین ہے سجدے میں بھی نے تیرے سبحان اللہ یا 5 وقت یا 7 وقت، 5 سبحان ربی الاعلیٰ 3 وقت، 5 وقت، 7 وقت یا 9 وقت نے ایک کوڑی تعداد میں پڑھے، یعنی سنگل اوڈ میں پڑھے. اچھا یہ دعائیں بھی لکھے جو ان بہاری شریف میں، تو اگر وہ یاد ہوں وہ بھی پڑھے. پچھی پوتے ہی زبان میں میمنی میں اردو میں پڑھ سجدہ شکر کے اندر دعا کری سی متا نے پچھی اللہ اکبر چوئی نے ابو تھی انہیں ان میں کوئی سلام نہ پھیرنوں. یہ سجدہ شکر کریا کراوے. سجدہ شکر کے دوران اگر کوئی سجدو کرن وارو ہی یعنی سجدے میں جائے جو یا اللہ تو جو کرم آئے کہ تو مطلب کہ مجھے تکلیف دور کری دینے، یا اللہ تو جو کرم آئے کہ تو مجھے لئی کری دینے، ہاں تو جو شکر ادا کرا تھا سجدو کروں میں مجھے مد نظر رحمت رکھی تو ہی بھی چوئی سکے نا، پتہ میمنی میں بھی چوئی سکے. دعا نہیں دعا کری سکے تو بالکل نے جو شکر ادا کری وہ بھی چوئی رہے تو میمنی میں بھی چوئی رہے اللہ جی بارگاہ میں پوتے زبان میں. اللہ پاک میمنی بھی جانے تو میمن پیدا کری ہے پانکے میمنی کچھ سکھایا ہے رب قریب. تو اللہ پاک کیا کرنے تھے کوئی چیز آئی نہ کہ جو اللہ پاک سے ان کی مطلب کہ چون جڑو آئی نہ بتے خبر ہے ہمیشہ سے خبر ہے، ہمیشہ لے خبر ہے جو کوئی سروج نہیں مطلب اللہ کے علم جو. تو اپنی زبان میں بھی آپ عرض کر دیں اپنے رب کی بارگاہ میں. اس سے موقع پر اپنی زبان سے کہنا ہی مناسب ہوتا ہے کہ جو اپنے جذبات ہیں وہ کہے جائیں، رٹائے الفاظ کہنے کے بجائے. ماشاءاللہ. میں یہ سجدہ شکر والا جو موضوع چلا، میں جو بھی امیر سنت سے محبت کرتے ہیں، متعلق ہیں، وابستہ ہیں، مرید ہیں، طالب ہیں، میں ان کے لیے اب درخواست کر رہا ہوں. جیسے کہ پتہ چلا کہ یہ ہوا اور امیر سنت اپنے بارے میں جیسے بتا دیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ امیر سنت کی کوئی پریشانی تھی، کوئی تکلیف تھی یا کوئی مرض تھا جس میں بہتری آئی ہے، افاقہ ہو گیا، کمی آ گئی، تو مرید کو چاہیے، اہل محبت کو چاہیے کہ وہ اس خبر پر سجدہ شکر ادا کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے امیر سنت ہمارے پیر و مرشد کے لیے یہ راحت اور آسانی کا سامان کیا، مولا ان کو سلامت رکھ اور ان کے لیے مزید آسانی اور راحت عطا فرما. انشاءاللہ یہ کریں گے نا، آپ کے دل میں اپنے پیر کی محبت بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ طریقت کی منزل آپ آگے اچھی طرح طے کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی کوئی ایسا واقعہ ارشاد فرمائیں کہ بظاہر اسباب نہیں تھے لیکن جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے. بظاہر اسباب نہیں تھے، یہ تو بہت سو کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کو مطلب یہ کہ کما کر اپنے پیسوں سے تو کبھی نہیں جا سکتے، بیچاروں کی تنخواہ ہی نہیں ہوتی اتنی، لیکن یہ کہ اللہ پاک کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ مطلب مدینے پہنچ جاتے ہیں. اس کے تو میں کبھی کبھی واقعات سناتا ہوں جو میں نے دیکھے ہوئے. سمجھے میں نے ایک دیوانہ ہوتا تھا، وہ نظر نہیں آتا پتہ نہیں بیچارہ کس حال میں، وہ بالکل یعنی کہ اس کو کوئی منہ بھی نہ لگائے، دیکھنا بھی نہ، میری شکل بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، جو بولو یہ بیچارے وہ ایسے ہی تھے. آتے تھے اجتماع میں، امامہ باندھتے تھے، لیکن ان کو بات کا اور کوئی بیچاروں کا ایسے اٹریکشن کچھ بھی نہیں تھا. ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ تھا تو کسی نے ان کو ٹیپ ریکارڈر دلا دیا
तो वो टेप रिकॉर्डर पर नाते सुनते रहते थे। तो इनको मतलब नाते सुनते देखकर किसी को हुआ कि ये आशिक रसूल है, नाते ही सुनता रहता है, चलो भाई मदीने चले जाओ। तो उसको खर्चा दे दिया, वो मदीने चला गया। वो जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। जब बुलाया आका ने खुद, जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए, खुद ही इंतजाम हो गए। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है हकीकत, काशिफ अत्तारी हैदराबाद से। सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की बारगाह में सवाल अर्ज़ है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम मस्जिद में दाखिल होते हैं और एतिकाफ़ की नियत करना भूल जाते हैं। जो हम नफिल एतिकाफ़ करते हैं, मस्जिद में दाखिल होकर नियत करते हैं, वो अब नमाज के लिए हम खड़े होते हैं तो हमें याद आता है कि हमने एतिकाफ़ की नियत नहीं की। तो क्या दौरान नमाज हम दिल ही में एतिकाफ़ की नियत कर सकते हैं? जवाब इरशाद फरमाइए, जज़ाकल्लाहु खैरा। हो तो जाएगी, रोज़े की नियत करेंगे तो भी वो भी हो जाएगी अगर वक्त है रोज़े की नियत का। तो चलो अभी से कल के रोज़े की नियत भी कर लो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लेकिन नमाज में है तो वो ज़बान से नहीं करनी है नियत, दिल में। मेरा ये सवाल था कि खुशबू लगाना तो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन वालिदैन हमारे या किसी के भी वालिदैन अगर खुशबू लगाने से मना करते हैं कि कोई आंसें वगैरह चढ़ जाएगा या कोई जिन वगैरह चढ़ जाएगा, तो इसकी क्या शरई हैसियत होगी? वॉशरूम में खुशबू होती है या वॉशरूम में जिन्नात रहते हैं? ये खुशबू पसंद करते हैं, बदबू पसंद करते हैं, आप समझ सकते हैं। और इसके लिए बाकायदा दुआएं हैं। दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस, या अल्लाह मैं खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो जब ये पढ़ लेंगे दुआ तो ये जिन्नात जो हैं ये नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। अच्छा, अब ये दुआ तो रही तो आती नहीं, अब क्या होगा? तो याद कर लें, घबराए नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। दाखिल हो, उल्टे पाँव से दाखिल होना होता है, निकल जब सीधा पाँव बाहर निकालना होता है। तो बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस, तो ये बिस्मिल्लाह पहले पढ़नी चाहिए। तो अगर बिस्मिल्लाह सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लें तब भी ये कि असल उस जो पर्दे की जगह है ना, ये बिस्मिल्लाह पढ़ने से जो अंदर में ये जिन्नात शैतान जो भी है इनकी नज़रों पर पर्दा पड़ जाता है। जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली उसे फिर खुला ये नहीं देख सकते, इनको नज़र नहीं आता। जब भी लिबास भी तब्दील करें तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, तो इससे वो जिन्नात वगैरह नहीं देख सकेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के जाया करें। तो अभी समझ पड़ गई ना आपको कि
खुशबू के बजाय बदबू ज्यादा खतरनाक है। तो ये बिल्कुल वहम है कि खुशबू लगाना जिन्नात चिमटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब खुशबू लगाना सुन्नत है और लाखों करोड़ों मुसलमान लगाते आ रहे हैं, लगा रहे हैं, बच्चे भी लगाते, खुशबू में बसे होते हैं। तो क्या बच्चों को बदबूदार रखोगे यार? बाद बच्चे वाकई बदबूदार होते हैं, सूंघे तो मूड खराब हो जाए। तो यूं बच्चे को खुशबू ज्यादा लगानी चाहिए ताकि जो अगर कोई मसला जानता हो बच्चे को सूंघने की तो उसको फरहत मिले, ना कि मूड खराब हो। फफहम, बस समझो और गौर करो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर जी जी इरशाद। अच्छा मैं पहले बोल दूं कि अगर किसी को देखो खुदा ना खास्ता कोई जिन वगैरह का असर हो जाए तो ये नहीं बोलना कि ये बताया गया था मदनी चैनल पर, हमने खुशबू लगाई और यूं तो यूं हो गया। तो ये जितने बच्चों को या बड़ों को या औरतों को ये इस तरह की वारदातें होती है जिन्नात की, तो क्या सब खुशबू की वजह से होती है? तो ये अल्लाह की मर्जी है, किसी के मुकद्दर में है तो वो कुछ हो गया। तो ये बिल्कुल नहीं कहना कि खुशबू से हो गया या फुला से हो गया। ये मैं अगर पहले वजाहत कर दूं। फिर आप कुछ फरमा रहे थे। सवाल ये था कि वालिदैन मना कर रहे हैं कि ना लगाएं। हाँ तो मैं वालिदैन को समझा रहा हूँ, बच्चे को क्या समझाना था? बच्चा अपने तौर पर तो ना इत्र ला सकता है बेचारा, ना लगा सकता है, माँ बाप ही लगाएंगे। तो ये वहमात है, इसको निकाल दो ज़हन से, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। बल्कि सुन्नत की नीयत से खुशबू लगाओगे तो आता जिन उल्टे पैर भाग जाएगा, अगर सत्ता ने आ भी रहा होगा तो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत नफासत है। आपका तो पसीना मुबारक ये खुशबूदार है। और बोलो, पसीना भी ऐसा खुशबूदार कि इतने जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, ऐसी खुशबू। इसके बावजूद आप इत्र इस्तेमाल करते थे। इतनी नफासत और मतलब है कि खुशबू से आपको मतलब है कि ये रग़बत थी। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम अपने नफ्स के लिए करते थे, हजारों हिकमतें। तो हमें भी चाहिए कि हम अब बदबूदार न रहा करें, मस्जिद में खुशबूदार रखो, ये तो हदीस पाक में है ना। इसी तरह के मज़ामीन हैं कि मस्जिद में खुशबूदार रखी जाए। पूरा रिसाला है अपना। तो क्या मस्जिद में क्या भूत चिमटते हैं, जिन्नात लिपट जाते हैं क्या? इतने हजार। अच्छा एतिकाफ में भी लोग रोकते हैं, ये भी आपको पता ही। ये मेरा वास्ता पड़ा है तो कि एतिकाफ में नहीं भाई हम नहीं, कुछ हो जाएगा तो कोई जिन वगैरह पकड़ लेगा तो यार कोई बात है यार। एतिकाफ में मतलब सुन्नत और सुन्नत मुक्कदा अलल किफ़ाया है, उसके मसाइल जो भी है वो आप लोग सुनते रहते हैं। तो एतिकाफ तो अजीम शान इबादत है। इसमें अगर जिन चिपटते होते तो फिर यार मस्जिद में आएगा कौन यार? कोई बात हुई यार। ड्रामा गांव में और रक्सो सरूद की महफिलों में या ये क्लबों में, वहां भी तो शैतान चिमटता है, जब भी तो बंदा जा रहा है यार, वहां भी शैतान चिमट रहे होते हैं। तो वहां लोग मर भी रहे होते हैं। तो अल्लाह करे मौत आए भी तो अल्लाह अल्लाह करते हुए मस्जिद में आए तो बड़ी सादत की बात है। अल्लाह पाक जिसके लिए जो मतलब चाहे फैसला फरमाए। तो बहरहाल लेके मस्जिदें तो खुशबूदार होती हैं, मज़ारात पे खुशबुएं होती हैं, अगरबत्तियाँ जल रही होती हैं, लोग खुशबुएं डाल रहे होते हैं। तो जो भी मुक़द्दस जगह है, यानी तवाफ़ में, काबे के तवाफ़ में जो जाने का जिनको सआदत मिली है, तो बाद वक़्त देखा हो कि बड़े बड़े अरब शेख जो है ना, वो असली ऊद की धुनी बहुत महंगा होता है, वो ऊपर इन्हें अंगेठी लेकर कंधे में उठा के या हाथ में पकड़ के ऊद डाल लल गई है, काबे शरीफ के तवाफ की जो फजा है इसको खुशबूदार कर रहे होते हैं। ओ ऐसी खुशबू के आदमी मस्त हो जाए। जिनका है अच्छा भाग गया, अच्छा तो ये मतलब वहमत नहीं। हर जगह मदीने में आका की गलियों में वो तो कल एक शेर भी तो हुआ था कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से ये गुजरे हैं, इस वक्त भी
गलियों में खुशबू है पसीने की, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, गुजरे जिस सनाए जुल्फ में मेरी उरूस फिक्र को सारी बहार हश्त खुल्द छोटा सा इत्रदान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर आखिरी अशरा आया चाहता है और मुतकिफीन का एक माशाअल्लाह एक अच्छा खासा हिस्सा मस्जिद की तरफ बढ़ता है आशिकान रसूल का, तो दुआ करें। कमोबे 30,000 मसाजिद में मदारिसुल मदीना लगते हैं दावत इस्लामी के, और 1 लाख से कमोबेश 1 लाख के आसपास ज़ैली हलके भी हैं पाकिस्तान के बाहर हज़ारों मदारिसुल मदीना और हज़ारों माशाअल्लाह ज़ैली हलके वगैरह हैं। अगर ये सारे के सारे मिलकर कोशिश करें ना, तो पता नहीं हज़ारों मसाजिद के अंदर जो मुतकिफ़ीन की बहारें होंगी, तो इस ताल्लुक़ से कुछ तरग़ीब भी हो जाए, दुआ भी हो जाए, तो क्या बात है मदीने की। आप देने तरग़ीब में सुन रहा हूँ। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप कोशिश करें, ये अपॉर्चुनिटी है आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़, ये सुन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है इत्तिकाफ़, और इसमें शब क़द्र की तलाश ख़ास इसका मेन बयान है इसके लिए कि शब क़द्र की तलाश 21, 23, 25, 27, 29 एंड 21, 23, 25, 27, 29 ऑफ नाइट जो होती हैं, ये ख़ास कर इसमें शब क़द्र की तलाश होती है। फिर गुनाहों से बचना, नेकियां करना, और माशाल्लाह आप देख रहे हैं पूरे माह का तो आशिकान रसूल बैठे हुए हैं, तो तमाम के तमाम आशिकान रसूल कोशिश करके हिम्मत करें। आपने यहाँ कई दफ़ा तासुरात सुने होंगे कि इस्लाम भाई आज भी कह रहे थे टेंशन था, परेशानी थी, क्या करे आगे इत्तिकाफ़ है। और भी आपने तासुरात सुने होंगे बड़ा टेंशन था, बड़ी परेशानी थी, यहाँ आगे काफ़ी सुकून मिल गया। तो क़ल्बी सुकून, ज़हनी सुकून, मैं कहता हूँ घरेलू सुकून भी हो जाता है बाद वक़्त। हम आदमी थोड़ा घर से निकले तो घर वाले भी सम टाइम ऐसा होता है कि यार कुछ चला जाए तो घर वाले भी सुकून में आ जाते हैं कि भाई ठीक है ये इत्तिकाफ़ के लिए जा रहे हैं। तो माशाअल्लाह इस्लामी बहनें भी घरों में भी इत्तिकाफ़ की सआदत हासिल करती हैं। आप जो इस्लामी भाई हैं वो मसाजिद की तरफ आएँ, दावत इस्लामी के आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों पर इत्तिकाफ़ करें, इंशाअल्लाह ताला खूब बरकतें मिलेंगी, नेक अमाल का एक अमल करने का उस पर जज्बा मिलेगा, तहज्जुद तो सलात व तस्बीह और ना जाने क्या क्या दुआएं मिलेंगी, और मज़े को मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरी तमाम आशिकान रसूल से दरख्वास्त है कि आखिरी अशरे की जो इत्तिकाफ़ है सुन्नत, इस तरफ रुख करें और मसाजिद में जाकर अपने जो भी राब्ता होता है वो करें। नीज़ इस्लामी बहनें भी अगर कोशिश करें अपने महरम को इस तरफ भेजें और ख़ुद भी मस्जिद बैत में इत्तिकाफ़ की सआदत हासिल करें, इंशाअल्लाह ताला खूब बरकतें नसीब होंगी। अमीर सुन्नत इनके लिए दुआ भी कर दें जो इसकी कोशिशें करें और जो इत्तिकाफ़ की सआदत भी हासिल करें। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ करे, मेरा मदनी बेटा मस्जिद में करे, मदनी बेटी मस्जिद बैत में करे, और जो इसके लिए दूसरों को तरगीब दे, कोशिशें करे। अल्लाह पाक इसको अशरे
आखिरी अशरे में जो जहन्नम से आज़ादियाँ मिलती हैं इन में इनको भी शामिल कर ले और जहन्नम से आज़ादी नसीब कर दे और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना ले। इन सब के सदक़े में मेरे हक़ में भी ये दुआएं कबूल हों। हाजी इमरान ने तरगीब दी, इनके हक़ में भी दुआएं कबूल हों। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मीठे आका करेंगे करम की नजर, मीठे आका करेंगे करम की नजर, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिका, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिका। इधर आ भी जाओ, इधर आओ, इधर आ भी जाओ, इधर दीनी माहौल में कर लो तुम एतिका, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिका। माह रमज़ान हमारे सामने आया, पहली तारीख आई, देखते देखते हम देख ही रहे हैं अशराए रहमत जिस तेजी के साथ हमसे जुदा हुआ, हाय हाय। और अब अशराए मग़फ़िरत की 16वीं शब है। बहुत कुछ सोचते थे हम, तो सोचा भी था ये भी करेंगे वो भी करेंगे, आधे से ज्यादा माह रमजान गुजर ही गया, कुछ हो नहीं पा रहा। अब इस अशरे का भी अक्सर हिस्सा गुजर गया और ये आखिरी के दिन कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ गुजर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपनी इसी तरह गफलत में रह जाए, माह रमजान गुजर जाए और हम कुछ पा ना सके। अभी कुछ दिन बाकी हैं, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे, ईमान सलामत रखे, इस मुबारक महीने को राजी करने में काश हम कामयाब हो जाए और अपनी बख्शिश करवाने में कामयाब हो जाए। वरना आखिरी रातों में भी यही एक जज्बे होते हैं, सके अत्तार बदकार काहिल रह गया फिर इबादत से गाफिल, इससे खुश हो के होना रवाना। अलबत्ता माह रमजान ये दिन गुजर जाता, अल्लाह करे वह ना आँख चांद देख कर रो पड़ी थी, साथ आमद के रुखसत खड़ी थी, आए जल्द वक्त रुखसत है आया। अल्लाह पाक हमें गफलत की नींद से बेदार कर दे और जिन्होंने इबादत की अल्लाह उनका सदका नसीब फरमाए। जा फिदा तुझ पे नाना हंसने कल्ब मेरा गम की जा फिदा तुझ पे नाना
دیکھتے دیکھتے 16ویں شب آ چکی ہے، اب تک کچھ نہ ہو سکا. اب جو کیفیت ہے آگے کیا ہو جائے گا کیا بات کرے، اب تک تو کچھ نہ ہو سکا. لیکن ابھی اللہ پاک کی رحمت، ابھی یہ ماہ رمضان کے مبارک لمحات ایام باقی. ہم ایک بار پھر عزم کریں کہ جو کچھ گزر گیا ہے کچھ ریکوری ہو جائے. کیا ہوگی ریکوری بھی بد باتیں کر سکتے ہیں، اور آگے اللہ کرے غفلت چھوٹے، عبادتوں میں ذوق ملے، شوق ملے. جو گھروں پر ہیں اور یہاں وہاں ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا آؤ مسجد کا رخ کر لو. کچھ نہیں پتا اگلے سال رمضان ملے یا نہ ملے، کچھ نہیں پتا. اب تو ہر گھڑی آخری، ہر دن آخری دن ہے، ہر رات آخری رات ہے. اب یہ 16ویں رات جو جا رہی ہے، اگلے سال ہی 16ویں رات آئے گی. تو یہ کہہ نہیں سکتے. کئی تھے جو پچھلے رمضان میں تھے ہمارے ساتھ، مگر اس بار نہیں ہے، نہیں ملا ان کو رمضان. بالکل رمضان سے پہلے ہی رخصت ہو گئے، بارڈر پر پہنچتے دنیا سے چلے گئے. تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیں ملے. کوشش کر لے، کیا پتہ یہ آخری عشرہ ہماری زندگی کا ہی آخری عشرہ ہو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، اے عاشقان رسول، اے عاشقان صاحب اور اے عاشقان ماہ رمضان، آپ مساجد کا رخ کریں. اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو توفیق دے ہم کچھ عبادت کریں. اور جو متقفین ان سے بھی درخواست ہے اپنی انفرادی کوششیں کریں اور اسلامی بھائیوں کو تیار کریں تاکہ وہ بازاروں سے اور جس طرح کا ماحول ہے اسے نکل کر مسجد کی طرف آئے. جو ہمارے متقفین ہیں انہوں نے جو لذت پائی ہے، ماشاءاللہ آپ کے تاثرات میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، جو آپ لوگوں نے لذتیں پائی ہیں، آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ یہ لذتیں ہمارے دیگر اسلامی بھائی بھی پائیں اور آئیں اور پائیں. تو آپ بھی اپنی انفرادی کوششیں جاری رکھیں. ملک و بیرون ملک ہزاروں مساجد میں الحمدللہ متقفین اب برکتیں لینے کے لیے جمع ہوں گے. آپ بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی نیت کریں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک مزدور طبقہ جس کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اس کے پاس بائک بھی ہے اور گھر میں ڈنر سیٹ وغیرہ کا سامان موجود ہے، کیا وہ نصاب میں آئے گا اور اس پہ فطرانہ واجب ہوگا؟ اگر صاحب نصاب ہے اس وقت صبح صادق کے وقت عید الفطر کے دن اور شرائط پائے جائیں گے، صدقہ فطر تو واجب ہوگا. چاہے مزدور ہو، چاہے ڈیلی ویجز پر کام کرتا ہو یا کچھ بھی کام نہ کرتا ہو، بے روزگار ہو. انہوں نے جو بیان کیا کہ موٹر سائیکل ہے تو وہ اور ایک ڈنر سیٹ کا کہا. اچھا ڈنر سیٹ کا جی تو جی سمجھ گیا. تو یہ اسکوٹر ہے جو استعمال کے لیے، اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدی، استعمال میں. ڈنر سیٹ بھی اگر استعمال کے لیے لیا ہوا استعمال میں تو یہ زکوٰۃ یا فطرے میں یہ نصاب میں شامل نہیں رہے گا، یہ الگ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی شجرہ عالیہ قادریہ میں ایک شعر ہے: حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. اس شعر کی وضاحت فرما دیں. یا اللہ تجھے حضرت شاہ ابو البرکات آل محمد رحمت اللہ علیہ کا واسطہ مجھے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت عطا فرما، اور حضرت شاہ سید حمزہ رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے مجھے بھی شہید عشق بنا، یعنی اپنی محبت میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والا بنا دے. یہاں تو وہی کہ اپنی راہ میں اپنی محبت میں جان قربان کرنے والا بنا دینا، وہ سعادت مل جائے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، اپنی جان قربان کر دوں. آج 16 ماہ رمضان ہے اور ہمارے شجر شریف کے یہ بزرگ جو ہیں حضرت سیدنا آل محمد مہروی شریف علیہ رحمہ، تو آج ان کا عرس مبارک ہے جی، جو ماشاءاللہ شعر بھی پڑھا گیا.
آئیے طرز میں سنتے ہیں. حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. حضرت شاہ حمزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ذکر ہوا، ان کا بھی جو عرس مبارک گزرا یہ 14 رمضان کو گزرا، اور آج 16 رمضان ہے. آج ہمارے یہ حضرت سیدنا آل محمد علیہ رحمہ کا عرس مبارک ہے، تو دونوں کا ذکر الحمدللہ اسی شعر میں. اللہ دونوں کے صدقے میں ہمارے پر کرم فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں جو کہ انگلش میں سوال کریں گے. برمنگھم جامعۃ المدینہ UK درجہ اولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ahmed Raza Tari from Jamiat al-Madina, Birmingham, UK. My question to Amir Ahl Sunnat is, what is your favorite book of A'la Hazrat? آپ کی پسندیدہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کون سی ہے؟ کون سی پسند نہیں ہے یہ طے کرنا تو اعلیٰ حضرت نے جو بھی لکھا آنکھیں بند. میں تو یہ کئی بار کہا پہلے بھی کہ اعلیٰ حضرت کی جو بھی کتاب آنکھیں بند کر کے خرید لو، اپنے گھر میں رکھ لو برکت کے لیے. پڑھنا نصیب ہو تو پڑھو، نہیں تو کوئی خاندان میں پڑھے گا ورنہ برکت ملے گی انشاءاللہ. کنز ایمان بھی ہر گھر میں ہونا چاہیے. کنز ایمان کے بارے میں تو بعض علماء نے لکھا، غالب مفتی احمد یار خان صاحب نے غالباً لکھا ہے کہ یہ کنز ایمان جس گھر میں ہوگا شریر جنات تنگ نہیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی فیس. Inshallah, I will go in Barama before I finish Jamiat al-Madina, inshallah. انشاءاللہ. جامعۃ المدینہ فنش کرنے سے پہلے 12 ماہ کریں گے. یعنی ابھی کون سے درجے میں؟ درجہ اولا. اللہ اکبر. زندگی کا کیا بھروسہ ہے. مطلب فوراً 12 ماہ کا سفر کر لو، پھر وہ بھی سفر جاری ہے. جہاں سے تعلیم چھوڑی وہاں سے دوبارہ شروع تو کر سکتے ہیں آپ، اور دوران سفر بھی آپ کو وہ علم حاصل ہوگا انشاءاللہ جو آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو جلدی کو ڈیٹ اگر پوسیبل ہو تو ابھی اناؤنس کر دو. After Ula, inshallah. اچھا آفٹر اولا. دیکھیں جس طرح آپ کو مناسب لگے، ورنہ جہاں سے ابھی 6 منتھ کے ایگزام ہوئے، شاید یہی کل کہا تھا نا کسی نے جی، ہے نا. تو جیسے کہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پچھلے سال آپ کو 6 منتھ کے بعد کا جو ہے نا اس میں شامل کر لیا جائے گا، بگڑے گا کچھ بھی نہیں. اصل مدنی قافلے میں سفر کے لیے شیطان جو ہے نا وہ زیادہ بہکائے گا آپ کو، تو ہو سکتا ہے کہ ارادہ بدل جائے. کوئی صاحب آزمائش آ جائے جس کی وجہ سے آپ سفر نہ کر سکیں، تو اس لیے وہ پڑھائی تو جاری رکھنے میں اتنا انشاءاللہ وہ پرابلم نہیں ہوتا. اللہ نے چاہا تو 12 ماہ کے سفر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے. اگر ممکن ہو آپ کے لیے، کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو، ماں باپ ناراض نہ ہوتے ہوں، تو کر لینا چاہیے. ماں باپ تو راضی ہوئے ہوں گے جبھی تو آپ کو شاید 1 مہینے کے لیے بھیجا ہوگا. فیصل آباد میں حاضر تھا تو کچھ علماء وغیرہ بھی جمع تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول تھا. تو میرے ساتھ ہمارے مدنی تھے، کچھ دارالفتہ اہل سنت سے متعلق بھی اسلامی بھائی تھے. تو اسی طرح مطلب کہ 12 ماہ کی ترغیب چلی، تو جو طلباء کرام تھے ان کے ساتھ بھی سلسلہ تھا. تو ماشاءاللہ اور بھی علماء تھے. تو ان میں سے ایک صاحب جو عالم صاحب تھے ماشاءاللہ وہاں تھے، محبت کرتے تھے، آئے تھے وہاں پر. کہا یار آپ ان کو یہ جو سفر کرائیں گے
تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی تعلیم میں حرج واقع ہو جائے گا اور ان کی وہ پڑھائی کا جو نقصان ہو جائے گا تو یہ کیسے وہ اچھے عالم بنیں گے؟ تو میرے ساتھ جو اسلام میں بیٹھے تھے نا وہ دارالفتہ اہل سنت سے متعلق تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں عرض کروں. میں کہا بالکل آپ بات کریں. کہ حضور میں دارالفتہ اہل سنت میں ہوں اور الحمدللہ وہاں میں مصروف ہوں، اور میں 12 ماہ سفر کر کے میں نے درس نظام پورا کیا ہے، اور جب میں نے 12 ماہ سفر کیا تھا تو اس کے بعد الحمدللہ میری پڑھائی کی سمجھ میں اور مجھے پڑھنے میں اضافہ ہو گیا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو 12 ماہ ہے نا، اس میں اللہ کی رحمت سے پڑھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور قابلیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اسٹڈی کا بہت موقع ملتا ہے اس میں. جی ہاں، اور جو ایک پریکٹس ملتی ہے نا حضور کے عام لوگوں میں رہنے کا موقع ملتا ہے، اور ان کے معاملات ان کے مسائل کا جو علم ہوتا ہے نا، وہ بڑا کسی کو پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے جاتا ہے. تو تمام اسٹوڈنٹس آف جامعۃ المدینہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ پلیز کائنڈلی جتنا جلدی ہو سکے بلکہ فوراً ہی 12 ماہ فول ٹوائل مدنی قافلے میں سفر شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور پڑھائی آپ کی وہیں سے کنٹینیو ہو جائے گی جہاں سے آپ نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا تھا. کیونکہ اگر آپ کہیں نا درس نظامی کرنے کے بعد ہم کریں گے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ پھر ماں باپ بولیں گے تم جلدی کمانا شروع کرو، تمہارا شادی کروانی ہے، آپ گئے کام صاحب کہاں وہ ہاتھ رکھنے دیں گے آپ 12 ماہ والوں کو؟ پہلے ہی کر لیں آپ، یہی مشورہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. قرآن پاک سے محبت رکھنے والوں کے لیے زبردست خوشخبری، اب قرآن پاک سمجھنا ہو گیا اور آسان. جی ہاں، اس مبارک مہینے میں مکتبۃ المدینہ لا رہا ہے شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ مفتی قاسم اتاری صاحب کی ایک اور شاندار تفسیر قرآن، اور اس تفسیر قرآن کا نام ہے تفسیر تعلیم القرآن. 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور کمال کی تفسیر ہے، آسان اردو کے اندر، اور اس کے اندر قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف بھی ہے، ترجمہ قرآن بھی ہے، آیتوں کا خلاصہ بھی ہے اور شان نزول بھی ہے. بہت کچھ آپ سیکھتے چلے جائیں گے قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے. جلدی کیجئے، تفسیر تعلیم القرآن فوراً حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے ہدیتاً طلب کیجئے. اور ہاں، اگر گھر بیٹھے منگوانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر فوری رابطہ کیجئے. مکتبۃ المدینہ. پہلی جلد کے پیجز ہیں 788 اور دوسری جلد یعنی والیوم کے پیجز ہیں 912، اور یہ سب مل کر بنے 1717، اور ان دونوں جلدوں کی پرائس ہے 3150، 3150. ماہ رمضان میں قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی تفسیر و ترجمہ پڑھنے کی دیکھا گیا ہے کہ رجحان بڑھ جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ جیسے ہمارے پاس 10 جلدوں میں صراط الجنان ہے تفسیر، اس طرح یہ 2 جلدوں میں بھی الحمدللہ تفسیر قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس سے ضرور آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. پرائز آپ نے سن لی 3150، 2 والیوم ہے اس کے، 2 جلدیں ہیں. لیں بھی اور اس کو تحفے میں بھی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے زبردست ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. بالکل لینا چاہیے اور تحفے میں دینا چاہیے. شادیوں میں اس میں لوگ تحفے دیتے ہیں، ہزاروں روپے کے بعض اوقات گفٹ پے کے دے دیتے ہیں. ابھی جیسے عید کا موقع آئے گا نا تو بڑے بڑے پھلوں کے گفٹ پیک اور اس طرح کی چیزیں کہ آدمی کھا تو سکتا نہیں ہے سارے یار، پھر ادھر ادھر مطلب ڈال دیا، پھر ناراض ہو گئے. تو اب 5000 کا گفٹ پیک دیں گے آپ، اس سے بہترین گفٹ پیک یہی ہوگا کہ یہ دونوں جلدیں آپ پیش کر دیں، مدینہ ہو جائے گا. اور یہ جو پھول کا بڑا نہیں دیتے گلدستے آج کل بڑے بڑے دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے 4-4 5-5 ہزار، اس سے زیادہ کے تو خالی یہ ہیں جو کہ لیا رکھا اور گیا. گلدستہ بڑے بڑے جو دیتے ہیں، بکے بھی کہلاتے ہیں. یار مہنگائی ہے بھائی. ہاں بکے بھی وہ اصل وہ ہوتے ہیں، پھر رکھنے کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں ہاتھ میں یوں لے کر دیے جاتے ہیں. تو اب یہ بھی مہنگے ہوتے ہیں. میں 4-5 ہزار بھی تو ایک ایوریج کے ساتھ نارمل، اس سے بھی مہنگے آتے ہیں. تو اب کچھ 4-5 ہزار روپے کا لے کے یہ دے دے، اور رہا کتنا اور کام کتنا آیا یہ اس کا فیصلہ خود کر لے. عید کے دنوں میں یہاں وہاں جاتے ہوئے یہ سارا مطلب نظام چل رہا ہوتا ہے. اگر اس طرح کا تحفے تحائف دینے کا اگر ہے، اور اس طرح قرآن کریم جو 2 جلدوں میں اگر اس کو دے دیا جائے 3150 روپے کا ہے، یقین مانے
اس کو بھی نہ دینے والے کو بھی اللہ نے چاہ تو وارے نیارے نہ ہو جائیں. بے شک بے شک. ہمت کریں پیارے اسلام بھائی. مریضوں کے بھی پاس تو وہ پھولوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں گلدستوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا کہ تراویح کی نماز شروع ہو چکی ہے تو اب یہ کیا کرے؟ عشاء کے 4 فرض پڑھ کر تراویح میں شامل ہو جائے یا عشاء کے 4 فرض پڑھے، سنتیں پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد شامل ہو؟ ہاں عشاء کے فرض کے بغیر تو تراویح ہوگی بھی نہیں، تو عشاء کے فرض پڑھے، سنتیں بھی پڑھ لے، بے شک نفلیں بھی پڑھ لے، اب تراویح میں شامل ہو جائے. فرض اور سنت کے درمیان بھی زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو فرض کے فوراً بعد سنتیں پڑھ لے، 2 سنتیں جو ہے. ایک اور سوال ہے کہ دانت میں درد ہو رہا ہو اور اس میں کوئی دوائی لگائی جائے تو اس کا روزے پر کیا اثر ہوگا؟ روزے میں تو نہیں لگا سکتے، کیونکہ دوائی کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ حلق سے نیچے پورا امکان ہے، پورا چانس ہے کہ چلا جائے. تو حلق میں اگر یہ دوا کا اثر محسوس ہوا، چلا گیا محسوس ہوا، تو اب یہ روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت ایک اور انگلش کا سوال شامل کریں گے جو کہ 12 ماہ مدنی قافلے میں بھی ہیں اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Aman Attari and my question is, what is the cure for that person whose heart is not inclined in doing ibadat and good deeds? Please do dua for my family and myself. Jazakallah. اس شخص کے لیے کیا علاج ہے کہ جس کا دل عبادت میں اور نیک کاموں میں نہیں لگتا؟ اللہ زبردستی دل کو نیک کاموں میں لگائے، کوشش جاری رکھے. بعض بزرگوں کا ہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا تھا، پھر میں نے 20 سال اس میں کوششیں کی، خوب کوشش کی، تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا. تلاوت 20 سال تک ہم کوشش کرتے رہے، پھر 20 سال تک اس کا نفع اٹھایا اور ہمارا دل لگ گیا. تو اس طرح وہ کہ جیسے انسان کا جسم جب بیمار ہے تو اس کو بعض غذائیں اچھی نہیں لگتی، اس کو کھانی پڑتی ہیں طاقت کے لیے یا جس طرح بھی، تو غذا اچھی نہیں لگتی، منہ خراب ہو جاتا ہے، ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے. پھر جب یہ اس کو ٹیسٹ نہیں آتا، پھر جب یہ تندرست ہو جاتا ہے، ہیلتھ فل ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر یہ کہ وہ غذا جو ہے وہ اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو یوں ہماری روح جو ہے وہ بیمار ہے، اس کو عبادت میں دل نہیں لگتا، یعنی ذائقہ اس کو ٹیسٹ نہیں ملتا، خشوع و خضوع لذت کچھ نہیں ملتی. مگر یہ کہ چھوڑے نہیں، جس طرح مریض غذا نہیں چھوڑتا، اسی طرح وہ عبادت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت ہمارے درمیان کچھ بزرگ ہیں جن کی عمر تقریباً 60 سال سے اوپر ہے، تو یہ آج موجود ہیں یہاں پر، اور آپ اگر ان سے کوئی سوال کریں اور انہیں جواب درست دینے پر یہ مدنی فیس دیں، ہم انہیں کوئی تحفہ پیش کر دیں. سبحان اللہ. حج کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ جی حج کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ جو درست جواب دے گا مدنی فیس کے ساتھ. عمر بھی بتائیں، اپنا نام بھی بتائیں، کہاں سے تشریف لائے. 10 ذی الحجہ کو حج 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. اچھا ہاں بھائی، کوئی یہ دوسرے بزرگ ہیں آپ کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے صحیح کہا غلط کہا، ایسا کوئی تاثرات دیتے ہیں؟ یعنی ایک ہیں جو ایک ہاتھ نظر آئے تائید کرتے ہیں. 9 تائید. اچھا یہ 9 تاریخ بول رہے ہیں، 9 تاریخ کو ذی الحج ہوتا ہے. اچھا 9 کو، تو انہوں نے غلط کہا جواب، انہوں نے غلط بات کی. انہوں نے 10 بتایا ہے اور یہ 9 بتا رہے ہیں، 9 ذی الحج بتا رہے ہیں. 9 ذی الحج والے ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. مدنی فیس کیا عطا فرمائیں گے؟ جو آپ چاہیں.
आपको जो देना मुर्शिद को देते हैं। मैं तो यहाँ पूरे महीने का इतिकाफ में हूँ और आगे काफले भी करता हूँ इंशाल्लाह। पूरे महीने के इतिकाफ में इंशाल्लाह आगे मस्जिद मदनी काफले में सफर करेंगे इंशाल्लाह। इन्हें तोहफा पेश किया जाए। एक और सवाल हुजूर। अच्छा है, 2 ने कहा है 9, एक ने 10 कहा, एक ने 9 कहा है। नहीं 2 ने 9 कहा है जो मैंने सुना। अच्छा आपने भी 9 कहा है। अच्छा आपने भी 9 कहा है, आपने भी 9 कहा है। नहीं, मुझ तक आवाज जो पहुंची वो इनकी पहुंची आप तक आवाज। एक की पहुंची थी किसी की। इन्हें भी तोहफा पेश किया जा रहा है माशाल्लाह। ये भी कोई तोहफा दे दे मदनी। ये रिसाले हैं, ये महानामा फैजान मदीना मैगजीन दावत इस्लामी। जिन्होंने कहा है, मगर इनको तोहफा तो क्यों मिले, इनको हमने पूछा थोड़ी था, एक से ही गुफ्तगू हो रही थी। बात तो ये है, इनको बोल पढ़ना ये भी दुरुस्त इन मानों अगर नहीं था, असल तारीख तो नहीं पूछी थी कि ये सही है या गलत है। मदनी फीस ले लें इनसे फिर। हाँ ले लें, भाई जल्दी जल्दी मदनी फीस दें आप। रात का 3 दिन का काबले के पैसे जमा करा रखे हैं और इसके बाद 63 दिन का मेरा इरादा है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों को भी काफिले मिल ले जाते हैं माशाल्लाह। एज पूछिए जी माशाल्लाह। सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार किस सहाबी का लक़ब है? जी सैफुल्लाह किन साहबी रसूल का लक़ब है आप बताएंगे? तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद। जवाब दुरुस्त नहीं है। चलें, ये बुजुर्ग इस्लामी भाई हो गए। इसी तरह हमारे दरमियान कुछ पठान इस्लामी भाई भी मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह आप उनसे सवाल करेंगे और उनको दुरुस्त जवाब देने पे इंशाल्लाह जो कुरान मजीद पश्तो में तर्जुमा आया है इंशाल्लाह ये मदनी फीस देंगे और हम इन्हें इंशाल्लाह वो कुरान पाक पेश करेंगे। सुभान अल्लाह। असदुल्लाह अल्लाह का शेर किस सहाबी नबी को कहते हैं? जी दोबारा सवाल करें। असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर किस सहाबी नबी को कहते हैं? दुरुस्त जवाब देने वाला मदनी फीस भी देगा इंशाअल्लाह। नाम बताएं। आदिल रजा। कहाँ से तशरीफ लाए? मदियन सवात। जवाब दीजिए। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। मदनी फीस क्या पेश करेंगे? हर जुमा हफ्ते इतवार इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मदनी काफिला। महीने में 4 मदनी काफिला। जी जी इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है रमजान की। माशाअल्लाह। कुरान शरीफ पेश करें। माशाअल्लाह। सैयदुल शुहदा किस सहाबी नबी को कहा जाता है? जी आप जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हसन रजा जमालवी है। सवाल जवाब ये है कि हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदुल शुहदा कहा गया है। सैयदुल शुहदा, शुहदा माना कुछ और है इसके। शुहदा अरबी लफ्ज है। सैयदुल शुहदा। सैयदुल शुहदा। सैयदुल शुहदा शीन पर पेश। सैयदुल शुहदा। जी ये हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु का लक़ब है और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का भी लक़ब है। सैयदुल शुहदा इनको भी कहते हैं। आप क्या मदनी फीस पेश करेंगे? इंशाअल्लाह 12 माह की नियत इंशाअल्लाह करते हैं। कब से? इंशाअल्लाह जून जुलाई में। जून जुलाई में इंशाल्लाह 12 माह के सफर की नियत कर रहे हैं। अच्छा माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? चले आप बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हसन रजा अत्तारी है।
मैं KPK लकी मारवाड़ से हूँ। माशाअल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जवाब दुरुस्त है। मदनी फीस इंशाल्लाह चांद रात मदनी काफिला। इंशाअल्लाहुल करीम। अकेले जाएंगे या दूसरे इस्लाम भाई को इंफरादी कोशिश करके लेके जाएंगे? इंशाल्लाह दोस्तों को भी दावत दूंगा। इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तशरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक में माह रमज़ान माह नेक आमाल का सिलसिला जारी है। इसी तरह 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की तहरीक भी चल रही है। तो आइए इसकी कारकर्दगी देखते हैं, नियतों की। रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 1200 दुरूद पाक पढ़ने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 12,27,890 12,27,890। इस्लामी बहनों की तादाद 1,04,283 1,04,283। टोटल तादाद 13,32,173 13,32,173। रमज़ानुल मुबारक 1445 सने हिजरी माह नेक आमाल में शामिल होने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 1,45,614 1,45,614। इस्लामी बहनों की तादाद 85,242 85,242। टोटल तादाद 2,30,856 2,30,856। रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी कुरान पाक पढ़ने वालों की नियतें। कुल कुरान पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 2,19,622 2,19,622। इस्लामी बहनों की तादाद 1,96,409 1,96,409। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की तादाद 4,16,031 4,16,031। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ाना वसल्लिम रमज़ाना ली वसल्लिमहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मुझे रमज़ानुल मुबारक में सलामत रख और रमज़ानुल मुबारक को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जब मजलिस खैर हो मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व
वातूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाजरीन माह रमज़ान मुबारक की खुशी में किए जाने वाले चरागाह के मनाजिर देखते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, रमजान में जिक्रुल्लाह करने वाले को बख्श दिया जाता है और इस महीने में अल्लाह पाक से मांगने वाला महरूम नहीं रहता। रमजान 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 बख्श दे मुझको इलाही माहे गुफरान के तुफैल, बख्श दे मुझको इलाही माहे गुफरान के तुफैल, मग़फ़िरत सबको दिलाने माहे रमज़ान आया, मग़फ़िरत सबको दिलाने माहे रमज़ान आया, रहमते रब की लुटाने माहे रमज़ान आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मज़ा आ गया। माशाअल्लाह। या अल्लाह पाक जो रमज़ानुल मुबारक की आमद की खुशी में, इसके आने की खुशी में, इसकी ताज़ीम के लिए अपने घरों को, दुकानों को सजाएं, तेरी रज़ा की खातिर जो सजाएं। या अल्लाह पाक इनसे राज़ी हो जा और इनकी कब्रों को रोशन करना। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने कुरान पाक सीखा और सिखाया और जो कुछ कुरान पाक में है उस पर अमल किया, कुरान शरीफ उसकी शफाअत करेगा और जन्नत में ले जाएगा। आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में एक माह रमज़ान एतिकाफ़ जारी है और आज हम आपको मोतकिफ़ आशिकान रसूल के मदरसातुल मदीना बालिगान में दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान करीम सीखने के मनाजिर दिखाएंगे। ऐ मोमिनो रब का तुम्हें मेहमान मुबारक कहते हैं जिसे सब माह गुफरान मुबारक। हाँ हाँ वो जो आया बस शाबान मुबारक। हाँ हाँ वो जो आया बस शाबान मुबारक। 25 मार्च को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस महीने के बारे में इरशाद फरमाया, इसमें उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है? जवाब, रमज़ान शरीफ। सवाल, सालगिरह इस्लामी साल से मनानी चाहिए या ईस्वी साल से? जवाब, इस्लामी साल से। सवाल, जनाजे में ज़्यादा सवाब किस सफ़ में है? जवाब, आखिरी सफ़ में। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद रिजवान मंडी अहमदाबाद, बिनते मुश्ताक अत्तारिया बहावलपुर, हमजा अब्दुल कादिर कराची, मोहम्मद अहमद बिन सज्जाद हुसैन राजनपुर, बिनते गुलजार मुल्तान, मोहम्मद शहबाज अत्तारी बिन अब्दुल रशीद डेरा इस्माइल खान और ये आलमी मदनी मरकज़ में एतकाफ़ में भी है। बिनते मोहम्मद आरिफ सखर, आतिफ रज़ा अत्तारी शकरगढ़, मोहम्मद शाहिद रज़ा बिन अहमद यार मेलसी, बिनते खालिद अत्तारिया गोजरा, असद रज़ा अत्तारी मुरीद के मोहम्मद याकूब अत्तारी ओबाड़ा। इन सिलेक्टेड नामों में कुरान दाजी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम: असद रज़ा अत्तारी मुरीद के, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाजरीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1,
जुम्मे के खुतबे के लिए कम से कम कितने लोगों का होना ज़रूरी है? सवाल नंबर 2, तालियां बजाना कैसा है? सवाल नंबर 3, क्या क़ज़ा रोज़े के साथ तरावी भी पढ़नी होगी? इन 3 सवालात के जवाब आप हमें SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी भाई ने अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। रमज़ान रहमत का सामान, रमज़ान बख्शिश का ऐलान, मदनी मुज़ाकिरा इल्म व अमल का जहां।